Good morning, students. So we were taking circulatory system, and about the blood, most of the things are covered. Everything almost is done in the chapter. So today we are having the next topic, that is tissue fluids and lymph. So tissue fluid, what is tissue fluid? It is also called intercellular fluid. Intercellular fluid means there are cells, and between the cells, inter means बीच में, cellular मतलब cells. तो cells के बीच में जो liquid होता है, that is called tissue fluid. Okay, if you are having this many cells are there, यहाँ पे आपके बहुत सारे cells हैं, तो इन cells के बीच में ये जो liquid flow कर रहा है, इसके चारों तरफ या इनके बीच में, that is called intercellular fluid. Intercellular fluid or the tissue fluid. Now, where does this tissue fluid come from? When I say that capillaries are taking, I was telling you in my last lectures that capillaries are taking blood to the various parts, and there is an exchange of oxygen as well as carbon dioxide through the capillaries. So in the capillaries, when there is exchange, also there is a release of a liquid from the blood. Some of the liquid part of the blood comes out through the capillaries, and that liquid part only constitutes the tissue fluid. So tissue fluid is actually the part from a blood, the liquid part which has come out from a blood. Now what happens, जो आपका blood में liquid part है, वो जब क्या होता है capillaries से बाहर आता है, तो that only is forming the tissues to bath in it. Bath in it means it is having, means all the nutrients are present there. और ये जो nutrients होते हैं, इनके presence से क्या होता है कि जो आपके cells होते हैं उनको nutrition भी मिलता है, and along with nutrition this tissue fluid is also having oxygen in it. तो ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ से आ रहा है? ब्लड के थ्रू ही आ रहा है. तो ब्लड से ही ये लिक्विड आया है, तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी देयर इज ऑक्सीजन इन इट, एंड व्हेन द टिश्यूज आर बाथिंग इन दैट लिक्विड दे आल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस इस लिक्विड में आ जाता है, तो ये लिक्विड क्या होता है, दिस अगेन गोज टू द ब्लड वेसल्स. ये देखिए टिश्यू फ्लूइड जो है दैट विल मीन्स अगेन इट विल एंटर द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में ये क्या करेगा, फिर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देगा, एंड अगेन इट विल गो टू द राइट ऑरिकल. जैसे सर्कुलेशन में होता ही है आपके, वापस वो ब्लड में चला गया है, तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन जो है उस टिश्यू फ्लूइड ने ऑक्सीजन सेल्स को दे दिया है, न्यूट्रिशन दे दिया है, सब कुछ दे दिया. उसके बाद वो वापस क्या करता है, उसी में आ जाता है आपके ब्लड कैपिलरीज में, व्हेन इट हैज टेकन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और उसके बाद कैपिलरीज से होते हुए कहाँ जाएगा वो, वेन्यूल में. वेन्यूल के बाद वेन में जाएगा, और वेन से डायरेक्टली आपका सुपीरियर या इंटीरियर वेना केवा, वेर एवर इट इज गोइंग, एंड फाइनली टू द राइट ऑरिकल. ठीक है, तो यहाँ ये दिस इज टिश्यू फ्लूइड. ओके, नेक्स्ट वन इज योर लिम्फ. तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक्चुअली इट इज दिस लिम्फ इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड. तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी मैंने आपको बोला कि टिश्यू फ्लूइड के फॉर्म में काफी सारा लिक्विड ब्लड कैपिलरीज में वापस चला जाता है. दिस आई टोल्ड यू, टिश्यू फ्लूइड अगेन गोज टू द ब्लड कैपिलरीज. लेकिन जब वो ब्लड कैपिलरी यहाँ से, मतलब देखो यहाँ ब्लड कैपिलरीज है ये बहुत सारी, तो यहाँ से जो लिक्विड है ना, ये वापस थोड़ा थोड़ा ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लिक्विड जो होता है वो वहां बचा रहता है बिटवीन द सेल्स, एंड दैट लिक्विड विच इज लेफ्ट forms the lymph. I'll once again revise. You are having capillaries. From capillaries some of the liquid is oozing out, and that liquid is actually intercellular fluid, or we can say tissue fluid. Tissues bath in that, they take oxygen and give out carbon dioxide. Then this carbon dioxide, the liquid which is containing carbon dioxide, again moves back to the capillaries, and it goes to the mainstream of the blood. Got it? Then some of the blood still is left between the cells. That left out liquid is called lymph. तो ये जो lymph होता है, lymph क्या होता है, ये आपका एक इस टाइप का लिक्विड है, जैसे आपका लिम्फेटिक सिस्टम है. देयर इज वन डायग्राम दे हैव शोन यू हियर. ये आपका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है. दिस होल डायग्राम शोज द पाथवे ऑफ द लिम्फ वेयर इट गोज. और ये जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के पॉइंट्स और सर्कल्स दिए हुए हैं, दीज आर एक्चुअली द लिम्फ नोड्स. तो लिम्फ नोड क्या करते हैं ना, कि यहाँ पे एक कलेक्शन सेंटर है.
और वहां से लिम्फ आगे जाके नया प्रोसेस होता रहता है, मतलब आगे आगे चलता रहता है। तो ये बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है और लिम्फ का मेन फंक्शन है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एंटीजेंस और वट एवर इज मीन्स आउटसाइडर्स, कुछ भी आ रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको रिमूव करना और उससे फाइट करना लिम्फ का मेन काम है। ओके, सो दिस difference is also minute channels named lymph vessels where it is called lymph, है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया है, ये छोटे छोटे नोड्स होते हैं और उन नोड से मिक्स होके जो पूरा लिक्विड जाता है, दैट इज कॉल्ड lymph। ओके, नाउ द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ अ ब्लड, सेल्युलर पार्ट्स। सेल्युलर पार्ट मतलब इसमें सेल्स जो होते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इसका फाइट करने का काम है, तो आपके WBCs जो होते हैं, दीज आर फाइटिंग द दिस फॉरेन सब्सटेंसेस। सो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, ल्यूकोसाइट्स में भी लिम्फोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आई हैव टोल्ड यू दे आर ऑफ मेनी टाइप्स, है ना। 5 टाइप्स के थे पीछे, अगर आपको टेबल याद होगी तो, है ना। तो उसमें भी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, एनगल्फिंग बैक्टीरिया उसका काम था। तो मोस्टली मीन्स दैट लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन द लिम्फ। और इसका नॉन सेल्युलर पार्ट जो है दैट इज वाटर। वाटर इज 94%, then solids हैं protein, fat, carbohydrate, enzymes and antibodies. All these things are present as a solid. Okay. Now function of a lymph. It is nutritive, supplies nutrition and oxygen to those parts where blood cannot reach. Now nutritive function का मतलब ये हुआ कि ये जहाँ जहाँ पे आपका क्या होता है, ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे इसने क्या करना है, nutritive means it will supply oxygen to the parts where the blood is not able to reach. जहाँ पे आपका ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ये उन पार्ट्स को भी ऑक्सीजन से सप्लाई करता है। दूसरा वाला है ड्रेनेज। Now drainage means it drains excess tissue fluid and metabolites when it returns. देखिए आपका जो लिम्फ होता है ना, that also again moves back, और मूव करके कहाँ जाता है, वो वापस आपके राइट ऑरिकल में ही जाना है। उसमें लिम्फ जो है वो वही लिक्विड है जो ब्लड से अलग हुआ है। आधा उसका पार्ट टिश्यू फ्लूइड था जो कि वापस चला गया है कैपिलरीज में, जो नहीं गया है वो लिम्फ बन गया है। तो लिम्फ भी कहीं ना कहीं जाके इट विल अगेन गो टू द राइट ऑरिकल, मतलब जाना उसने फिर ब्लड का ही पार्ट है वो, और उसने वहां जाके वापस ब्लड में मिक्स होना है। तो यहाँ पे ड्रेनेज का काम जो होता है कि जितने आपके बॉडी में एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा हो गया है आपकी बॉडी में, तो उसको वापस ले जाने का काम कौन करेगा, टिश्यू फ्लूइड लिम्फ करेगा, है ना। तो कहीं पर भी कुछ छूटा है, बचा है, जो कि ब्लड नहीं कर पाया है या लेके नहीं जा पाया है, उसको ले जाने का काम कौन करेगा, लिम्फ करेगा। तो ड्रेनेज इज अगेन देयर। देन एब्जॉर्प्शन। Absorption, fats from the intestine are absorbed through the lymphatics. आपके बॉडी में, अगर आपको 9th स्टैंडर्ड में याद होगा, आई हैव टोल्ड यू दैट आपके सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये डायरेक्टली सप्लाई हो जाते हैं ब्लड में। एमिनो एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, एवरीथिंग मीन्स वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन द ब्लड दैट गोज टू द ब्लड। लेकिन आपके जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपके इंटेस्टाइन में, इफ यू रिमेम्बर आई हैव टोल्ड यू, लैक्टेल्स आर द सेल्स। तो लैक्टेल सेल्स जो होते हैं ये विलाइज में होते हैं आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दिस विलाइज they contain lacteals and these lacteals are actually the cells which absorb fat. तो आपके खाने में जो फैट होगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये लैक्टेल्स करते हैं, और ये मोस्टली लिम्फेटिक सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन का काम है। I hope it's clear. Lacteals are the cells, these are the lymphatic cells which are present in the intestine, small intestine, and all the nutrients are absorbed except the fats. और फैट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं, लैक्टेल्स करते हैं, जो कि एक लिम्फेटिक सेल्स है। ओके, नाउ एब्जॉर्प्शन के बाद है डिफेंस, ये इसका मेन काम है। नाउ डिफेंस, lymphocytes and monocytes of the lymph फंक्शन टू डिफेंड द बॉडी। इसका काम ही क्या है, एनगल्फिंग करना, फैगोसाइटोसिस इफ यू रिमेम्बर। तो आपके ये जो डिफेंस का काम है, तो आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब अंदर आता है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो आपकी बॉडी का नहीं है और इसने आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना है, तो सबसे पहले आपके ये डिफेंस में काम करते हैं और उनको फाइट करते हैं, एनगल्फ करते हैं। तो ये काम जो एनगल्फिंग का है दैट इज डन बाय द
दिस लिम्फोसाइट्स ओनली। ओके, तो ये लिम्फोसाइट्स ही डिफेंस का काम, मतलब मेन काम जो है इसका ये डिफेंस का ही है। देन वी आर हैविंग दिस स्प्लीन होता है हमारा एक ऑर्गन जो मेन ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का, और दूसरा है टॉन्सिल्स। ये आपने टॉन्सिल्स देखे होंगे, है ना, और कई बार आपके क्या होते हैं, स्वेल अप भी हो जाते हैं। तो टॉन्सिल एक परमानेंट ऑर्गन है जो आपके बॉडी में होता है, यहाँ गले के दोनों साइड में, और इसमें कई बार क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन। ओके, सो टॉन्सिल्स जो हैं, टॉन्सिल्स क्या हुए कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपकी बॉडी में इतने सारे जर्म्स और बैक्टीरिया चले गए हैं कि अब आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही है, देन ओनली देयर इज अ swelling and pus formation in the tonsils. Got my point? So your body is again and again trying to defend you. If there is means so much of attack of viruses and bacteria, then only your lymphatic organs start swelling up and they start pain. Means there is pain in the tonsils also, even in the spleen or wherever lymph nodes are there. तो वहाँ पे दर्द होने लगता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब पहले ही अपनी तरफ से पूरा फाइट करने की कोशिश करते हैं आपके लिम्फोसाइट्स, और जो लिम्फ है वो पूरा फाइट करने की कोशिश करता है। जब नहीं कर पाता है तो आपके लिम्फ नोड्स में या आपके टॉन्सिल्स में क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये आपको क्या बता रहा है ना, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ टाइम व्हेन यू नीड मेडिसिन्स एंड यू हैव टू विजिट डॉक्टर। इसका मतलब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर स्प्लीन। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्प्लीन। ये आपका लिम्फेटिक ऑर्गन है और ये आपके फिस्ट के बराबर है। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी के बराबर, ठीक है। और ये आपके कहाँ पे है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इज इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में प्लेस्ड है और रेडिश ब्राउन कलर का ये ऑर्गन होता है बिहाइंड द स्टमक एंड अबव द किडनी। ये आपका यहाँ पे स्टमक है, इसके पीछे ये होगा और किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। नाउ देयर आर सम फंक्शंस ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन एक्ट्स एज अ ब्लड रिजर्वायर। ये इसका मेन फंक्शन है। ब्लड रिजर्वायर मतलब ब्लड को स्टोर करने का काम। जब भी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती है तो ये क्या करता है, ब्लड को रिलीज कर देता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की। ओके, देन इट प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स। अब क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है स्प्लीन, तो इसका काम लिम्फोसाइट्स बनाना है। देन इट डिस्ट्रॉयज द वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स। डिस्ट्रॉयज मतलब ये जो आपके पुराने सेल्स हो गए हैं रेड ब्लड सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करने का, तोड़ने का काम करता है, उनको फिनिश कर देता है। और लास्ट में है इन एम्ब्रियो, स्प्लीन प्रोड्यूसेस आरबीसीज। स्प्लीन का काम ना, अगर आपका एम्ब्रियो है मतलब जो मदर की वूम में होता है बेबी, तो जो एम्ब्रियो है स्प्लीन का काम वहां पे क्या है, रेड ब्लड सेल्स को बनाना भी है। मतलब स्प्लीन आपका डिस्ट्रॉय करता है इन एडल्ट्स और बनाता किसमें है, एम्ब्रियो में। जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो वहां पे स्प्लीन का काम आरबीसीज को बनाना होता है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट do call me or ask me on my personal number. So the chapter is over, circulatory system. Tomorrow I'll take a class and with that I'll start the new chapter. Okay, thank you.